इससे पहले बच्चों हम कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शंस एंड डिफरेंट कंजम्पशन थ्योरीज हमने स्टार्ट की थी। We studied about the Keynesian theory of consumption. It was also called psychological law of consumption, and after related to it was the relative income theory, which was presented by the Duesenberry. It is an extension of the Keynesian theory of consumption, and it is based on the original data. And then is permanent income theory by Milton Friedman, which we will study today. Basic idea of Keynesian theory of consumption and relative absolute income hypothesis was the same. And then there was an extension which we called it a relative income hypothesis. According to the Keynes, consumption is a function of income, but there is a non-proportional relationship between consumption and income. When income increases, consumption increases, but not with the with the same proportion. According to the Keynes, marginal propensity to consume is always positive and always less than 1. But it was also supported with the data, and there are the 4 theories which are complete theories of consumption which were presented after Keynes and are supported with the help of data. The first one is the absolute income theory. As I told you earlier, it is the extension of the Keynesian psychological law of consumption. Second is relative income theory, and third is the permanent income theory, and fourth is the life cycle income theory. Today we will study about the permanent income theory. According to the absolute income theory, consumption is the function of absolute income of a person. And APC we will calculate as C over Y, and MPC change in consumption divided by change in income. And consumption function according to the absolute income hypothesis would look like this, where consumption is a function of disposable income and it is not 100% proportional relationship, it is a non-proportional relationship. And as the income increases, APC or average propensity to consume decreases, which is presented in this diagram that we started from here 45-degree line and above 45-degree line, and we have drawn different lines from the origin to present the average propensity to consume. So here average propensity to consume is 1/2, and at this line it is 1, and then 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, and we presented here the data of the families that when their income doubles, their consumption also increases, but it is not increased with the same proportion. So APC decrease over time with the increase in income, and consumption function is we get by joining these points origin D, E, G, J, L, presenting a non-proportional relationship between consumption and income. But the time series data also proved this theory, but there were some problem which shows that in the long run it was not the non-proportional relationship, but it was found that in the long run every propensity to consume was equal to marginal propensity to consume. So Simon Kuznets presented the extension of the absolute income hypothesis, which we call long run, in which he presented that in the long run consumption function APC remains constant, but in the short run consumption does not decrease that much as income decreases, and it does not increases that much as the income increases. So the non-proportionality hypothesis is true for the short run but not for the long run.
So the long run consumption function looks like this: C is equal to Cy, where small c is constant, it not changes over time. While the long run consumption hypothesis present करने के लिए आप उसमें C not enter करेंगे और relationship will become non-proportional. So what was the conclusion of absolute income hypothesis? Cross-sectional data ने यही प्रूव किया कि MPC is less than APC. Short-run data also proves that MPC, marginal propensity to consume, is less than average propensity to consume. But in the long-run data show that there was no tendency of average propensity to consume, which is C or Y, to change over the long period. Accordingly, in long run, as income increased, consumption also increased in the same proportion. ये long run की finding है data की. First two were the short run data proof. Then there was relative income theory. Relative income theory में ये बात तो prove होगी कि in the short run relationship proportional नहीं है. Income increase होने से consumption उस level की increase नहीं होती. उसमें reason जो सी हैं, इन द शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लोग अपनी इनकम इंक्रीज होने से उसका कुछ पोर्शन सेव कर लेते हैं. लेकिन रिलेटिव इनकम थ्योरी ये कहती है कि एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी से जिसकी बात डिफरेंट है कि लोगों की कंजम्पशन उनके एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है. रिलेटिव इनकम से क्या मुराद है कि उनकी सोसाइटी में रिलेटिव पोजीशन क्या है, जिस जगह या वो जिस जगह पे रह रहे हैं उनके नेबर्स, उनके रिलेटिव, इफ दे आर बेटर ऑफ देन देयर नेबर्स then they will spend relatively less. अगर आपकी पोजीशन पहले ही अपने नेबर से बेहतर है तो आप अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पोर्शन स्पेंड नहीं करेंगे. लेकिन रिलेटिवली अगर आप अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से पुअर हैं, तो आप अपनी आपको मेंटेन रखने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए आप रिलेटिवली ज़्यादा स्पेंड करेंगे. ये है रिलेटिव इनकम थ्योरी एज कम्पेयर टू रिलेटिव नेबर पोजीशन इन द सोसाइटी. दूसरा वर्जन इन द लॉन्ग रन रिलेटिव इनकम थ्योरी क्या कहती है कि आपकी सिर्फ रिलेटिव पोजीशन जो सोसाइटी में सिर्फ वही इफेक्ट नहीं करती, बल्कि दूसरी चीज जो लॉन्ग रन में, ये कंपैरिजन भी दिया हुआ था एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी और रिलेटिव इनकम थ्योरी का, कि अगर आपकी रिलेटिव पोजीशन बेटर ऑफ ना हो और आपकी सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम डबल हो जाए तो आपकी एपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम रेशो से अपनी जो इनकम है उसको कंज्यूम करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जब तक कि आप रिलेटिवली अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर्स में, अपनी लोकेलिटी में बेटर ऑफ नहीं हो जाते. जबकि दूसरा वर्जन जो इसका है वो ये था कि इसमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की डिफरेंशिएशन क्या है कि आपकी रिलेटिव पोजीशन सिर्फ ये नहीं कि सोसाइटी में क्या है, बल्कि देयर इज अ थिंग व्हिच वी कॉल्ड रेचेड इफेक्ट, कि आपका प्रीवियस पास्ट लार्ज जस्ट इनकम लेवल क्या था और आप उससे पहले किस लेवल तक कंज्यूम कर चुके हैं. आप अगर प्रीवियसली किसी हायर लेवल पे कंज्यूम करते रहे हैं तो विद यहाँ पे फॉर एग्जांपल C1 प्रेजेंटेड है, तो विद द डिक्रीज ऑफ इनकम आपकी कंजम्पशन उस लेवल की डिक्रीज नहीं होगी. और उसी तरह जब इनकम इंक्रीज होगी तो इन द बिगिनिंग, इन द शॉर्ट रन आपकी कंजम्पशन उतनी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था कि आप अपनी रिलेटिव पोजीशन को देखते हुए कंज्यूम करते हैं. सेकंड पार्ट क्या है कि आप अपनी रिलेटिव पोजीशन सिर्फ दूसरों से नहीं देखते, अपना भी देखते हैं कि पास्ट में अगर आप किसी हायर लेवल पे कंज्यूम कर चुके हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अचानक ही अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज कर लें जब आपकी इनकम डिक्रीज हो. इट इज़ कॉल्ड रेचेड इफेक्ट इन द कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल में जाहिर है कि लोगों की इनकम में बूम एंड रिसेशन आता रहता है. एज वाई इंक्रीजेस एपीसी विल फॉल, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से आप एकदम अपनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि रिलेटिवली आपकी पोजीशन जो सी है वो बेटर है. लेकिन इनकम डिक्रीज होने की सूरत में जब रिसेशन हो इकोनॉमी में तो आप अपनी कंजम्पशन उसी तरह फौरी तौर पर डिक्रीज नहीं करते, बल्कि आप अपनी सेविंग को डिक्रीज करने को प्रेफर करते हैं. इसमें कुछ क्रिटिसिज्म था, जिसमें एक जो मेन क्रिटिसिज्म है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी इनकम डिक्रीज हुई है तो जरूरी नहीं कि आप अपना कंजम्पशन लेवल मेंटेन रख सकें, जो कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का एक मेन पॉइंट है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. इन सब की थ्योरी जो होती है इनके अगर आप जो नाम है, टाइटल है, इन पे आप गौर करें. एब्सोल्यूट में इनकी टोटल आप अपनी इनकम देखें और उसके हिसाब से कंज्यूम कर लें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है कि आप एब्सोल्यूट इनकम नहीं देखें, आप अपनी सोसाइटी में अपनी अपने पुराने प्रीवियस इनकम लेवल से अपनी रिलेटिव पोजीशन अब क्या है उसको देखें और आप कंज्यूम करें. जबकि थर्ड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की थीम क्या है? Starting point of this theory is that consumptions depend upon
permanent income, the income which a consumer hopes to get or estimates to get in the coming year. एक परमानेंट इनकम का हर शख्स ने कुछ ना कुछ अंदाजा किया होता है कि इन द कमिंग ईयर हम इतना इनकम मेरी होगी और मैं उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम कर सकता हूँ. So according to this theory, consumption depends upon permanent income rather upon the current income of Keynesian idea or the relative income of Rosenberry idea. कि ना तो ये रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन और ना ही आपकी करंट इनकम पे, बल्कि आपकी परमानेंट इनकम ने उसी और डिसाइड करती है कि आपकी कंजम्पशन क्या होगी. Thus, permanent consumption is a function of permanent income. Accordingly, a consumer has permanent consumption which depends on his permanent income. Friedman, in his theory, introduces the following concepts which elaborate the concepts of permanent consumption and permanent income. पहले मतलब थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं जैसे परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजम्पशन, ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी कंजम्पशन, मयर्ड इनकम, मयर्ड, इनको एक दफ़ा पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसको थ्योरी को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है मयर्ड इनकम और ऑब्जर्व्ड इनकम. मयर्ड इनकम को वाई एम से प्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ, ये ऑब्जर्व मयर्ड या ऑब्जर्व मैं लैका नु पढ़ावा लैक बॉय नु पूछी मां ते बोते लैक है ना वहां चल देना बोल पढ़ाਉਂਦੀ सिर्फ लैक बच्चा वो बोल ना पढ़ाਉਣਾ ने हां थोड़ा थोड़ा फिर Now, these are the concepts which will be used in understanding the permanent income hypothesis. First of all, मयर्ड इनकम और ऑब्जर्व्ड इनकम. मयर्ड इनकम और ऑब्जर्व्ड इनकम किसी भी गिवन ईयर में आप किसी शख्स की जो टोटल इनकम रियल में कैलकुलेट करते हैं जो मौजूद है उसे आप कहेंगे मयर्ड इनकम. मयर्ड इनकम जो किसी एक गिवन ईयर में किसी भी शख्स की होगी मयर्ड इनकम, उसके मजीद टू पार्ट्स होंगे, वाई पी एंड वाई टी. वाई पी मीन कि परमानेंट इनकम उसकी कितनी है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स की पर मंथ पे 20,000 है तो ये उसकी परमानेंट इनकम हो जाएगी. प्लस सेकंड उसका पार्ट है ट्रांजिटरी इनकम. ट्रांजिटरी इनकम मीन जो कि परमानेंट ना हो, हर महीने आपको ना मिलती हो, या चाहे आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, बल्कि जैसे एक बोनस है तो वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम. और अगर किसी वजह से आपको कोई फाइन हो गया, अचानक आपका कोई नुकसान हो गया, आपका वॉलेट चोरी हो गया, तो आपकी जो इनकम उस मंथ में कम हुई है, जो कि हमेशा हर दफ़ा ऐसा नहीं होना, उसे आप कहेंगे नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम. अब ये जो नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है और पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है, इसे ऐड किस में होना है, मयर्ड इनकम में. अगर तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम ऐड हो मयर्ड इनकम में, तो मयर्ड इनकम परमानेंट इनकम से उस मंथ में ज्यादा हो जाएगी जब फॉर एग्जांपल आपको बोनस मिला है. जबकि जो ट्रांजिटरी इनकम है कि जैसे अगर आपका वॉलेट चोरी हो गया, आपको कोई फाइन हो गया, कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो गया, तो ये माइनस हो जाएगी आपकी मयर्ड इनकम में से. जिस मंथ में आपकी ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव होगी, उस मंथ में आपकी मयर्ड इनकम आपकी परमानेंट इनकम से कम होगी. Thus, if positive yt is greater than negative yt, then y measured is greater than y permanent. For example, वही example इधर दी हुई है, worker gets a special bonus in a year and it does not accept it in the coming year, then the y measured will be higher than y permanent. And same is for the negative effect of transition. But these unexpected additions and subtraction from a person's income are expected to be cancelled out over a long period. However, they exist in the short run. अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम में जो चेंजेस आती हैं विद द पैसे जो कि मयर्ड इनकम में शो होती हैं, ट्रांजिटरी इनकम पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इन द लॉन्ग रन ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती है. इंसान की एवरेज इनकम जो असल में परमानेंट इनकम होती है वो वही रहती है. सेम आर द कॉन्सेप्ट फॉर द मयर्ड कंजम्पशन, एक्चुअल और ऑब्जर्व कंजम्पशन. मयर्ड और एक्चुअल और ऑब्जर्व कंजम्पशन क्या है कि किसी भी गिवन ईयर में एक इनकम जो आप उसकी कैलकुलेट किसी भी शख्स की करेंगे उसे हम कहेंगे कि इस शख्स की मयर्ड कंजम्पशन है. इसके अगेन टू पार्ट्स हैं, परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन. और अगेन ट्रांजिटरी कंजम्पशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. इसमें एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल कोई सेल किसी वजह से आपने चीज़ प्लान नहीं की लेकिन आप उसे अचानक खरीद लेते हैं, तो आपकी
मैयड कंजम्पशन में ट्रांजिटरी कंजम्पशन ऐड होगी और उस मंथ या उस ईयर में आपकी मैयड कंजम्पशन आपकी परमानेंट कंजम्पशन से ज़्यादा होगी। जबकि अगर आपको कोई चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं बट इट इज़ नॉट अवेलेबल, आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देते हैं, तो आपकी नेगेटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन है। नेगेटिव की वजह से जब ये ऐड होगी आपकी मैयड कंजम्पशन में, तो उस मंथ या उस ईयर में आपकी मैयड कंजम्पशन आपकी परमानेंट कंजम्पशन से कम होगी। इन सब कॉन्सेप्ट्स को सामने रखते हुए अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द also depends upon the value of, यहाँ पे also होना चाहिए था, value of stock of human wealth plus non human wealth। कि परमानेंट कंजम्पशन और परमानेंट इनकम के अलावा आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ के क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किस चीज़ के फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की परमानेंट कंजम्पशन डिवाइडेड बाय परमानेंट इनकम से जो रेशियो आएगी वो के है। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ह्यूमन एंड नॉन लेबर वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ आपकी क्या है कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल है। नॉन लेबर वेल्थ क्या है कि आपके पास कोई स्टॉक है, एसेट्स हैं जिनसे आपको इनकम आ रही है, उनकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो इफेक्ट करेगी आपकी परमानेंट कंजम्पशन को। टी मीन आपकी टेस्ट एंड वाई पी आपकी परमानेंट इनकम। लोगों की परमानेंट इनकम सेम भी है और उनकी टेस्ट डिफरेंट होगा, उनकी कंजम्पशन जो होती है वो डिफरेंट होगी। Now, according to Friedman, that because of permanent income and permanent consumption, the APC will remain constant. As a result, every propensity to save will also remain constant. He says that people save because they want to provide consumption to their families in the future, but the people with low income prefer present consumption over future consumption. Accordingly, lower income groups are expected to consume more as compared with their income, while the higher incomes are expected to save more out of their higher income. On the other side, the consumption is high, आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, our savings are low, while on the other side, the consumption is low. As a result, the APC and AP, यहाँ पे average propensity consume होना चाहिए था, will remain constant. Accordingly, APS है ये यहाँ पे। Accordingly, if the permanent income of all the families changes, there will be no change in consumption and saving ratio. Friedman says that transitory consumption is not related to the transitory income. In other words, MPC out of transitory income remains the same. इसमें जो नॉन प्रोपोर्शनैलिटी है उसको फ्रीडमैन ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जो हायर लेवल जिन लोगों का इनकम होता है उनकी जो कि बहुत सी ज़रूरियात एंड वांट सेटिस्फाइड हो चुकी होती है, इस वजह से वो सेव ज़्यादा करते हैं ताकि फ्यूचर के में ज़्यादा कंजप्शन प्रोवाइड कर सके खुद को और अपनी फैमिली को। जबकि वो लोग जिनकी इनकम लेवल लोअर होते हैं उनके पास ये गुंजाइश नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी करंट इनकम जो होती है कंजप्शन रिलेटिवली ज़्यादा होती है, जबकि उनकी इनकम रिलेटिवली कम होती है। जबकि दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि ट्रांजिटरी इनकम अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन इफेक्ट नहीं करती आपकी ट्रांजिटरी कंजप्शन को। ये फ्रीडमैन का ख्याल है जो कि बाद में क्रिटिसिज्म में कि इट्स नॉट करेक्टेड। The unexpected increase or decrease in income may result in increase or decrease in saving. According to the Friedman के अचानक आपकी इनकम में कोई इजाफा हुआ है या किसी वजह से आपकी इनकम में कम हो गया, आपको नुकसान हो गया, तो इससे आपकी सेविंग का तो फर्क पड़ सकता है बट योर कंजम्पशन विल नॉट बी इफेक्टेड। अब तक बच्चों हमने जो पढ़ा है इसमें से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे की अटेंडेंस रहती है तो उसको माफ़ कर दें। बाकी हम इसको कल या मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी क्लास कल ले लूँ क्योंकि कल वाली अपनी क्लास रह गई थी। यार मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो उसको काइंडली अभी पूछ लें। ओके मैम।